بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، آقا کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام گدا تم پہ کروڑوں درود تم پہ کروڑوں سلام۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضى اللہ۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اگر دنیا نے حق کو ٹھکرا دیا تو ناکام حق نہیں ہوگا، بلکہ وہ لوگ ناکام ہوں گے جنہوں نے حق کو ٹھکرا دیا۔ اور مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں، تم کسی کے ساتھ بھلائی کرو اور تمہیں اس کا بدلہ برائی کی صورت میں ملے تو سمجھ لو تمہاری نیکی قبول ہو گئی۔ میں آل پاکستان نفٹ حق گروپ کے تمام امپلائیز کو مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے صبر پہ، کہ جس طریقے سے نازیبا الفاظ اور الزامات کی بوچھار کی گئی، لیکن اس کے باوجود آپ تمام لوگوں نے انتہائی صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا۔ آپ کی جرتوں کو، آپ کے صبر کو میری طرف سے سلام۔ دوستوں، مجھے اندازہ تھا اور مجھے یہ بھی اندازہ تھا کہ میں اسپیچ کروں گا اور ایک ہلچل سی مچے گی۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ 70 لوگ ہیں، 75 لوگ ہیں، انف 100-125 لوگ ہوں گے، تو ایک دن کے اندر یا 48 گھنٹوں کے اندر یہ کون لوگ ہیں؟ تقریباً 500 کے قریب لوگوں نے یہ ویڈیو دیکھ لی۔ تو اس کا مقصد یہ ہوا کہ لوگ سن رہے ہیں، اور اگر میں نے ایک اسپیچ ریکارڈ کر دی، اس میں نے کون سا نازیبا الفاظ استعمال کیے، اس میں نے کس کی کیا برائی کر دی، کس کے اوپر کیا الزامات لگا دیے، کہ اس کے بدلے میں آپ لوگوں نے مجھے یہ انعام سے نوازا۔ ساتھ ساتھ میں بہت سارے لوگوں نے بہت اچھے کمنٹس بھی کیے ہیں، میں ان سب کا شکریہ ادا کروں گا، اور بہت سے لوگ اس میں ان کمنٹس کرنے والوں میں یونین میں شامل نہیں ہیں۔ دوستو، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، لیکن بدقسمتی سے ہمارے نفٹ کے امپلائیز، ہمارے دوست، ہماری یونین کے خلاف دوسری یونین والے جس طریقے سے بد زبانی اور بدگوئی، فحش گوئی، گالم گلوچ کا استعمال کیا، اس سے تکلیف ضرور ہوئی، لیکن فرق کوئی نہیں پڑا۔ گالیاں دینا جس کا کام ہے وہ گالیاں دے گا، اور گالیاں دے کے دعائیں دینا میرے نبی کی سنت ہے۔ دوستوں، ایک اچھے مسلمان ہونے کا ثبوت دیجیے۔ یہ بات یاد رکھیے گا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا۔ صبح مغرور کو وہ شام بھی کر دیتا ہے، شہرتیں چھین کے گمنام بھی کر دیتا ہے، اور وقت سے آنکھ ملانے کی کوشش نہ کرو، وقت انسان کو نیلام بھی کر دیتا ہے۔ آپ نے جو رویہ، جو طریقہ اپنایا، جس طریقے سے گالم گلوچ کی، بدتمیزیاں کی ہیں، اس سے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، نہ میرے حوصلے میں کوئی اثر پڑا۔ ہاں، البتہ اگر کوئی شخص کسی کے اوپر جھوٹے الزامات لگائے، گالیاں بکے، تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے گناہ جڑ جاتے ہیں، تو مجھے فائدہ ہوا، ایز اے یونین مجھے فائدہ ہوا، کیونکہ آپ کے اخلاق کو، آپ کے کردار کو، آپ کے رویے کو، آپ کے انداز کو آل پاکستان نفٹ کے لوگ دیکھ رہے ہیں،
وہ غور کر رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں, وہ ٹائم لے رہے ہیں. کچھ بیوقوف یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس تھوڑے سے لوگ ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کے پاس انتہائی تھوڑے لوگ بچے ہیں, اور بہت جلد آپ لوگ تنہا رہ جاؤ گے. بہت جلد. آپ سے کوئی سوال نہیں کرتا, کسی کو آپ سے ہوپ نہیں ہے, کوئی آپ کے انتظار میں نہیں ہے, کسی کو آپ سے اچھی امید نہیں ہے سوائے چند لوگوں کے. وہ مفاداتی ٹولہ ہے. وہ لوگ ہیں جو عہدیدار ہیں, لیکن عام امپلائیز دیکھ رہا ہے, بغور دیکھ رہا ہے کہ ہر گروپ انتہائی سلیقے سے, طریقے سے, احسن طریقے سے جواب بھی دیتا ہے, مقابلہ بھی کرتا ہے. تمہاری گالیوں سے ہم نہیں ڈرتے. آج میں ایک بات بہت اہم آپ کو نوٹ کراتا چلوں. یونین کو کمزور کرنے والے کون؟ وہ لوگ ہیں جو کہ بد کرداری دکھا رہے ہیں. اس میں سب سے بڑا نام ہے معروف کا. جس طریقے سے اس نے کمنٹس میں, جس طریقے سے عزیر کو ماضی میں, جس طریقے سے اس نے اسٹیٹس پہ اور دیگر معاملات میں, اور جس طریقے سے لوگوں کو فون کر کے ہماری یونین کے اندر اہم رول ہے معروف آپ کا, محبوب آپ کا, حزب اللہ شیخ آپ کا, اور جعفر شیرازی آپ کا. میری آپ سے کوئی دشمنی نہیں ہے. آپ چاروں کو میں یہ کہوں گا, آئی لو یو. ہمیں جتانے میں, ہمیں بنانے میں, ہمیں بڑھانے میں, ہمیں مشہور کرنے میں آپ کا اہم رول ہے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. ایک ہمارے ساہیوال کے دوست ہیں قمر بھائی, وہ بھی بڑی گالم گلوچ کر رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ہم اپنی تربیت دکھائیں گے, آپ اپنی دکھاؤ. آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ قرآن و حدیث سے ثابت کر دوں گا میں کہ محبوب نے کوئی غلط بات نہیں کی ہے. کیا ہوا؟ ثابت کرو, آؤ. اور اسلام آباد سے ہمارے دوست, بہت اچھے دوست علی بھائی, یہ وہ علی بھائی ہیں جو آج سے نہیں طویل عرصے سے CWC ممبر ہیں یونین کے. آپ سے اتنا نہ ہو سکا کہ 4 سال سے اپنے سینٹر اور یونین کے معاملات کو حل کر لیتے. میں جب آیا اور ہوٹل میں تھا, آپ نے بتایا مجھے, ساری کہانیاں سنائی, اور میں نے آپ کو کہا تھا میں آ گیا ہوں, اب یونین بھی آئے گی. آپ مجھے کہہ رہے ہو میں انتشار پھیلانے والا ہوں. ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا اسلام آباد والوں کو. کہہ رہے ہو اسلام آباد اور یونین کو, ارے ملانے والے ہیں ہم. جدا تو تم تھے, اب ہم نے ملایا ہے. اور بڑے ایکٹیو نظر آئے ستار بھائی. میرا نام یوز کیا. تمہارا نام کیا ہے بھائی؟ کون جانتا ہے تمہیں؟ بڑے مشہور آدمی ہو, بڑے چرچے ہیں, تمہاری ضرورت ہے ہمیں. ایک بات لیکن ضرور کہوں گا کہ اسلام آباد آنے سے پہلے میں صرف ایک شخص کو اسلام آباد میں جانتا تھا اور میری بات ہوتی تھی, وہ تھے عبدالستار. علی بھائی, آپ نے کہا کہ ہم کل بھی ساتھ تھے, آج بھی ساتھ ہیں. یہ آپ کا رٹا ہوا جملہ ہے سب کا. کل کہاں ساتھ تھے یار؟ آج کہاں ساتھ ہو؟ چند لوگ ساتھ بٹھا کے کیا اسلام آباد تمہارے ساتھ ہے؟ نہیں. اور اسلام آباد کے اندر جو دوریاں تھیں یونین سے, اس کی وجہ ہو تم, اور اس کی وجہ ہے ستار. بہرحال ہمیں دعائیں دو. اور قمر بھائی, جو آپ گالیاں دے رہے تھے, آپ گالیاں دو, ہم دعائیں دیں گے. کیونکہ گالیاں دیتا ہے کوئی تو دعا دیتے ہیں, اور دشمن آ جائے تو چادر بھی بچھا دیتے ہیں. ایسے ہیں سرکار میرے, اور ہم ان کے امتی ہیں, ہم ان کے امتی ہیں. تم
तुम भी उनके उम्मती है, थोड़ा सा लिहाज कर लो। ये जो चंद लोग बचे हैं ये भी नहीं बचेंगे, तुम हमसे मुकाबला करने निकले हो। मैंने तो तुम्हें शुरू में ये कहा था इस यूनियन को कि मुझसे उलझना नहीं, मैं यूनियन छोड़ दी और मुझे खामोशी से एक तरफ रहने देना, लेकिन मुझसे उलझते चले गए। और मैंने अपनी पहली स्पीच में कहा था कि तुम गिराने में लगे हो, तुमने सोचा ही नहीं, तुम गिराने में लगे हो, तुमने सोचा ही नहीं। अरे अगर गिरा तो मसला बन के खड़ा हो जाऊंगा। आज एक स्पीच आती है, चारों तरफ से हंगामे, परेशानियां, बेचैनियां, इल्जामात की बौछार, और इल्जाम क्या लगाते हो कि मैंने कहा कि 20 लाख रुपए बंद कमरे में फ़हीम साबिर ने लिए, मैनेजमेंट ने दिए। तो मैनेजमेंट से भी माफ़ी मांगूं, फ़हीम साबिर से मांगूं, नफ्स से मांगूं? और मेरे भाई आप इल्ज़ाम लगा रहे हो, मैं आप पे इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। शहर बड़े में रहते हो, लेकिन अकल थोड़ी सी बड़ी करो। गांव के बच्चे को भी इतनी समझ है, एक छोटे छोटे कस्बे के लोगों को इतनी समझ है कि जो इल्ज़ाम लगाता है सबूत वो पेश करता है। तो अब तुम 3 दिन में तुम सबूत पेश कर दो। तुम्हें मेरा चैलेंज है कि मैंने कहा। मेरे मुंह में अपनी जबान डालने की कोशिश कर रहे हो। ये मेरा मुंह है, तुम्हारा थोड़ी है, इसके अंदर तुम्हारी जबान थोड़ी है। और एक हमारे फैसलाबाद के दोस्त हैं इजाज भाई, उन्होंने एक स्पीच रिकॉर्ड करा दी, जबरन ले लिया। वाह भाई वाह, जबरदस्त, बड़ी अच्छी आपने स्पीच की। 1 मिनट 38 सेकंड की उसमें 8 झूठ है और आपका चेहरा बता रहा है। उस स्पीच के अंदर आपका खौफ बता रहा है कि ये स्पीच आपने प्रेशर में की और यूनियन ने आपको तन्हा छोड़ दी। आपके साथ जाती हुई यूनियन आपके साथ नहीं खड़ी, जैसे हिजबुल्लाह के साथ नहीं हुई खड़ी। आखिर में बेचारे को हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ गई। इन रिटर्न माफीनामा लिखवाया। तुमने बात तो कर दी कि उसने जबरन दिया, फिर तुमने इल्ज़ाम लगाया। सबूत कौन देगा? तुम दोगे। एजाज मैंने तो माफ़ कर दिया था, लेकिन वो इमरानुल हक है, अगर वो माफ़ करेगा तो बात बनेगी। मैंने इंक्वायरी कॉल नहीं की, लेकिन अगर इमरानुल हक इंक्वायरी कॉल कर दे तो तुम बहुत मुश्किल में आ जाओगे। एक काम करना, फैसलाबाद सुन रहे हो ना जाफर शिराजी, तुम भी ये स्पीच सुनोगे। एक काम करना है कि स्पीच रिकॉर्ड कराओ या लेटर लिखो, जैसे तुम लिखते हो यूनियन को। आसिफ भट्टी के खिलाफ भी लिखा, रिकॉर्डिंगें भेजते हो। तुम एक स्पीच रिकॉर्ड कराओ और उसके अंदर जो है ना इंक्वायरी की डिमांड करो। फैसलुल हक, इमरानुल हक बदमाश है ना, उसके खिलाफ इंक्वायरी कॉल क्यों नहीं देते हो? मैनेजमेंट को लेटर क्यों नहीं देते हो? मेल क्यों नहीं करते हो? वो बदमाशी कर रहा है तो उसकी सजा मिलनी चाहिए ना। इंक्वायरी करवाओ। एजाज तुम तन्हा रह गए, तुम्हारे साथ ना जाफर शिराजी खड़ा है ना तुम्हारे पीछे यूनियन खड़ी है। कौन खड़ा है तुम्हारे पीछे? तुम स्पीच के अंदर कहते हो कि ये मेरे फ्लैट पे आए। तुम्हारा फ्लैट कहाँ है भाई? तुम क्वार्टर में रहते हो, फ्लैट और क्वार्टर में फ़र्क ही नहीं पता। काश हम भी पढ़े लिखे होते। फिर तुमने कहा कि जबरन ले ली, HR में पता करो। इल्ज़ाम इतना घटिया लगाते हो, ये इमरानुल हक का सबर है। इतना घटिया इल्ज़ाम, जबरन ले ली। HR से पता तो कर लेते, वहां पे पहुंची नहीं। आप सबूत दे सकते हो, 100 रुपए आपके कटे पिछले मंथ की सैलरी का, वो दिखा दो आप, सैलरी शीट नहीं। और आपने इमरानुल हक को दी, क्यों दी? और अगर दी तो आपने कोई रिसीविंग ली? नहीं। कोई आपके फ्लैट पे आया और दरवाज़ा खुला हुआ था, वो जो बोलते गए तुम हाँ करते गए। मेरे भाई इसकी वजह से तो तुम दूसरे भी इल्ज़ामात लगा सकते हो। 5 थे वो,
कुछ होश के ना खोलो, कुछ होश के ना खोलो। ये ऊंचे हथकंडे करके डरा दोगे, रोक दोगे, इंक्वायरियाँ करवाओ ना। इस्लामाबाद वाले दोस्त, आप इंक्वायरी करवाइए ना। तजलील करके तुम्हें बड़ा मज़ा आता है, तजलील कर लोगे बड़ा कमाल हो जाएगा। अच्छा जी, एक हमारे हैदराबाद के दोस्त हैं, वो कह रहे हैं कि मैंने कहा कि 7% दिलवा दूंगा, तो अब तक 7% क्यों नहीं दिलवा सके, मैं झूठा हूँ, तो दिलवाऊँ ना मैं 7%। अबे मेरे भाई जुनेद, मैं तुझे थोड़ा सा पढ़ा लिखा और थोड़ा सा अक्लमंद समझता था। आपने कहा कि मैंने अपनी पिछली स्पीचों में कहा, ओ भाई यूट्यूब के अंदर सारी स्पीच डाउनलोड है, कोई डिलीट नहीं की है, हम चोर नहीं है डिलीट कर दें, सारी मौजूद है, सब देखें। कब कहा मैंने, किसको कहा मैंने कि 7% जो है मैं दिला दूंगा। 7% क्यों दिला दूंगा, 3 साल का 25% तो मैनेजमेंट देने के लिए तैयार है, 8.33 तो वही हो गया, तो 7% क्यों दिलवाऊंगा। बोनस का 5%, आपके बेसिक सैलरी को मल्टीप्लाई करें 12 से तो 5 आता है, 5% तो आपका ये माइनस हो गया, 5 अगले साल इंशाल्लाह माइनस ना हो जाएगा, और आप हम पे इल्जाम लगाते हो। और इस्लामाबाद वाले भाई, एक बात मैं तुम्हें बता दूं, 24 दिसंबर को फ़हीम साबिर ने अपनी स्पीच में कहा कि मैं मैनेजमेंट से अकेले मुलाकात करता हूं, मेरे मरकज़ी ओहदेदार मुझ पे शक करते हैं कि मैं अकेला क्यों मिलता हूं। तो आप अकेले क्यों मिलते हो भाई, यूनियन की मीटिंग का आपको उसूल नहीं पता, लेबर लॉ नहीं पता। 3 लोग आपके साथ मौजूद होने चाहिए, और मैनेजमेंट में किसी से अकेले क्यों मिलते हो, उधर भी 3 लोग मौजूद होने चाहिए। ये अनफेयर लेबर प्रैक्टिस है, ये लेबर लॉ के खिलाफ है। जब आप अकेले मिलोगे और अकेले बंदे से मिलोगे तो लोग आप पे शक ही करेंगे ना, सही करते हैं मरकजी ओहदेदार। और आपको इस तवस्सुल से बता दूं, जो आपने इल्ज़ाम लगाया है, जी हाँ मैं भी आपकी शक करता हूँ। ढील हुई है क्या हुई है मुझे नहीं पता, मुझ पे ये इल्ज़ाम मैं मैनेजमेंट के साथ मिला हुआ हूँ। अब इसका दूसरा रुख भी तो ज़रा देख लो। हमने कई दफ़ा इंक्वायरियाँ कॉल की, हमें कुछ नहीं मिला, किसी को निकाला नहीं गया, हमारा कोई इंक्रीमेंट नहीं हो गया, हमारे कोई मामला हल नहीं हो गए, लेकिन मैनेजमेंट से मैं मिला हुआ हूँ। अब कुछ लोग तो ये कह रहे हैं यूनियन और मैनेजमेंट मिली हुई है, तो क्या करूँ, उनका मुंह पकड़ लूँ या आप पकड़ लोगे? वो उनकी परसेप्शन है, उनकी राय है, ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा ही है, ये बात अलग है। ऐसा हो सकता है, ये बात अलग है। और आपने तो नया ही काम शुरू किया हुआ है, मैनेजरों की तजलील कर दो, ओहदेदारों की तजलील कर दो। काशिफ महमूद, कभी आसिफ शाह, कभी खालिद, कभी कोयटा का मैनेजर, कभी एबटाबाद का मैनेजर, मैनेजरों को बदनाम करो, उनकी तजलील करो। और काशिफ, राफे और मौज़म भाई को तो बेचारों को जब दिल करते हैं फुटबॉल बनाते रहते हैं, इस बीच में ठोक दो उनको। क्यों? उनके दिमाग में ये है मैनेजरों के कि शायद हम स्पीच रिकॉर्ड नहीं करा सकते। मेरे भाई, लॉ के हिसाब से ऐसा कुछ नहीं है। आपको जमहूरियत है, आप आज़ाद पाकिस्तान के आज़ाद शहरी हो। अगर कोई आपकी तजलील करे, आप स्पीच रिकॉर्ड करा के इसकी तजलील का जवाब दे सकते हो। शरीयत भी आपको इजाज़त देती है, पाकिस्तान भी आपको इजाज़त देता है, लेबर लॉ भी आपको इजाज़त देती है। जो आपके डोमेन में नहीं आता वो आपकी तजलील करे तो आप स्पीच रिकॉर्ड करा सकते हो। लोगों पे ये इल्ज़ाम कि मैनेजर हमारी मदद कर रहे हैं, अगर ये परसेप्शन कायम करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो मेरी मैनेजर हजरात से गुजारिश है कि आप कर लो, इनको बता दो। बोले ये तना रह जाएंगे, तना तो आप रह जाओगे भाई, बल्कि तना रह चुके हो। मैं आपसे मुकाबला नहीं करूँगा, मेरा आपसे कोई मुकाबला नहीं है। बगौर सुन लो, वो नवाब शाह का आसिफ भाई है ना, जिसको शायद पाकिस्तान में चंद लोग जानते हो, उनसे भी मुकाबला करो तो सारे वोट उसको पड़ जाएं। इंतहाई जूनियर है फैसल रहमान, आपके मुकाबले में उसको भी खड़ा कर दो ना, तो आपकी ज़मानत जब्त हो जाए।
चैलेंज दे दो हमें, हम थोड़े से लोग हैं ना, चैलेंज करो हमें, हम मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, हर फोरम पे भी, हर जगह पे भी। हमारे हौसले पस्त करने की कोशिश करते हो, डराने की कोशिश करते हो। तुम बदतमीजियां करोगे, हम डर जाएंगे, माफिया मांगना शुरू कर देंगे। अगर गलत बात होगी, हाथ जोड़ के माफी मांगेंगे। और मेरी इस स्पीच से, इस लहजे से, इस अंदाज से, या पहले कभी किसी की भी दिल आज़ारी हुई है तो भाई हाथ जोड़ के माफी। अना का मसला नहीं है, जिद नहीं है, दिसंबर में हो जाएगा, यूं हो जाएगा, यूं हो जाएगा, लॉलीपॉप। हमारे तर्जुमान उज़ैर भाई ने क्या कहा, बिल्कुल सही कहा। उन्होंने फेसबुक की तस्वीर पे लगा दिया कि पहले 630 एम्प्लॉइज़ का सोचो, सियासत बाद में करना। तो इसमें गलत कौन सी बात है? नो मोर लॉलीपॉप, इसमें गलत कौन सी बात है भाई? और आपने जो गालियां दी हैं वो, ये तरीका होता है? जैसा सीखा है वैसा पेश करोगे, क्योंकि बच्चे बड़ों से सीखते हैं। माजी में एक रिकॉर्ड है, एक अंबार लगा हुआ है बदतमीजियों का। बहुत अफसोस होता है, कोई पूछने वाला नहीं था ना, किसी के मुंह में जबान नहीं थी, एक खौफ था, एक दहशत थी। हमने एम्प्लॉयज़ का फ़ायदा कराया। अब 50,000 मिले या 5 लाख मिले एक एम्प्लॉयज़ को, आपको उधर से कुछ नहीं मिलेगा। परेशानी ये है, मैनेजमेंट कह रही है जो बनता है वो ले लो, लेकिन आलतू फालतू चीज़ों के पैसे नहीं देना चाहती। COD मसला इसलिए है। ये बताना चाह रहा हूँ कि फ़हीम साबिर को तुम्हारी जो है वो बहुत ज़्यादा फ़िक्र है। इतनी फ़िक्र है कि 2 साल होने को आ गए, इंक्रीमेंट नहीं हो रहा, फ़िक्र ही लगी पड़ी है, जलसों में घूम रहे हैं। इससे क्या प्रेशर शो करने की कोशिश कर रहे हो? लेकिन ये प्रेशर मेंटेन ऐसे नहीं होता, बहुत हल्कापन दिखा। मैं आप आज तमाम अपने हक ग्रुप के लोगों को ये बात बावर कराना चाहता हूँ, आपसे कोई भी उलझे, कोई भी बदतमीजी करे, आपने शाइस्तगी से जवाब देना है, आपने नहीं उलझना है, नहीं लड़ना है। ये कुछ और चाह रहे हैं और हम उस तरफ जाना नहीं चाह रहे हैं, और खुदा करे कि हम उस तरफ ना जाएं। हम गलत हैं, अनफेयर लेबर प्रैक्टिस करते हैं, हमने झूठ बोले हैं, या तो प्रूफ दे दो या फिर कोर्ट ले जाओ ना। क्योंकि पहल हम नहीं करते, काउंटर अटैक ज़रूर करते हैं। तुम जाओ हम भी जाएंगे, तुम बुलाओ हम आएंगे, इधर नहीं आने देंगे, उधर नहीं आने देंगे। ये ग्रुपों में करना बहुत आसान होता है। और ये छोटी छोटी जो है ना वॉइस रिकॉर्डिंग करोगे, अब मैं जवाब नहीं दूंगा। वीडियो एविडेंस रिकॉर्डिंग करना ना, तो वीडियो बनाना। 10-10 साल से यूनियन के चैंपियन बन रहे हो ना, जो CCWC मेंबर, उन सबको कह रहा हूँ, ये स्पीच आ रही है, कम से कम कल 50 स्पीचें आ जाए। तुम्हारे पास तो तादाद बहुत है, लोग बहुत हैं, दलाइल बहुत होंगे। बहरहाल खेल अब शुरू होगा। और मैं उस दिन स्पीच कर रहा था तो मैंने कहा था कि दिसंबर के हवाले से एक शेर सुनाता हूँ, तो वो उस वक्त टाइम की कमी की वजह से नहीं सुनाया था मैंने। लेकिन आज ये जो मौजूदा सूरत हाल है, और हम टारगेट किए हुए हैं दिसंबर को। क्यों टारगेट किए हुए हैं दिसंबर को? लोगों को भी देख लें, और COD ये फ़हीम ने ही फाइनल करनी है, हम उस COD को फाइनल होता हुआ भी देख लें। ये करो, फिर हम मुकाबला करेंगे। रजिस्ट्रेशन करा लो, यूँ कर लो, ये मैं चंद दिन में करवा लूँगा। मुझे ना यूनियन रोक सकती, ना मैनेजमेंट रोक सकती है। रोकने का एक ही हल है, ख़त्म कर दो मुझे। ना मैं बिकूँगा, ना झुकूँगा, ना डरूँगा। और आपको आज एक आखिरी बात बता दूँ कि जो निफ्ट के मौजूदा सूरत हाल हैं, अगर आप लोग नहीं खड़े होंगे तो बाद में दोस्तों पछतावा आप लोगों को होगा। सफ़र के आखिरी पत्थर के बाद आएगा
सफ़र के आखिरी पत्थर के बाद आएगा, मज़ा तो यार दिसंबर के बाद आएगा, मज़ा तो यार दिसंबर के बाद आएगा, कह दे जाके कोई शोलों से चिंगारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से, फूल इस बार खिले हैं बड़ी तैयारी से। क्या बोलूँ मैं, चल रही है अमीन भाई, तुमने कैमरा हिला दिया। बहरहाल तमाम देखने और सुनने वालों का शुक्रिया। इंशाल्लाह बहुत जल्द दोबारा अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं स्पीच करूँगा, वरना शायद स्पीच ना करूँ। आप लोग बुला रहे हैं, बहुत जल्द आप लोगों से मिलने भी आऊँगा। थोड़ी वक्त और हालात की चश्म साक़ी तेरी इनायत पे पाबंदी है, इन दिनों वक्त पे हालात पे पाबंदी है, दिल शिकन होकर रहता हूँ तेरी निफ्ट में सच बोलने पे पाबंदी है। और उनकी तशनगी अभी बाकी है, बहुत हुई बात मगर बात अभी बाकी है, यूँ तो कहने को गुजर चुकी है रात काफ़ी, मगर हाँ रात अभी बाकी है। और यूँ तो उम्र भर के लिए काफ़ी हैं दो हाथ मेरे मगर एम्प्लॉइज़, पाने को तेरा हाथ अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, रात अभी बाकी है। तमाम देखने और सुनने वालों का शुक्रिया। अस्सलाम।